Hello, good afternoon, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And well, it's been an exciting World Cup so far, and now we are almost towards the final leg of the World Cup before we go into the knockout stages. आज एक और मुकाबला है, उसके बारे में बात करेंगे, but उससे पहले let me bring in my esteemed panelists into the conversation. With me, I have today three former Pakistani captains, three outstanding minds of the game of cricket. I've got the young dynamic, one of the best runners between the wicket, a great fielder and a great player of spin bowling, former captain Shoaib Malik. Good afternoon, assalamu alaikum Shoaib. Good afternoon, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. With that, I've got Mr. Dependable, one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history, Misbah. Good afternoon, assalamu alaikum Misbah. Good afternoon, walaikum assalam, assalamu alaikum to everyone. And finally, the man of crisis, outstanding behind the wickets, and also former captain of Pakistan. I've got the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Good afternoon, assalamu alaikum. Good afternoon, walaikum assalam, assalamu alaikum everyone. Our dear royalty, पिद्दी फुल चुन के पिद्दी टी करे के पिद्दी फुल चुने के बानी, उसके तहरीर करने वाले, उसके शायर जनाब वसीम अकरम हमारे साथ आज स्टूडियो में इस वक्त मौजूद नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी आज सुबह, तो उन्होंने फैसला किया कि सुबह का सेशन वो जो है वो he'll sit it out. So wherever you are, Skip, missing you in the studio already. All right, with that, let's talk about what went down yesterday. कल था मुकाबला, दो जो टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए, उनके दरमियान it was India versus South Africa. And it was India batting first. रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 326 रन बनाए एक मुश्किल विकेट के ऊपर। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे इंडिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। विराट कोहली, जिनके की कल सालगिरह भी थी, उन्होंने बेहतरीन फैशन में अपनी ये सालगिरह जो है बनाई। I mean, look at that. It was just like a movie script. You grow up dreaming to play for India. You play for India in front of a huge packed audience crowd. In a World Cup match, you on your birthday and score a century, and that's how it was, like a movie script for Virat Kohli. 101 runs there. Then Shreyas Iyer also putting up a brilliant partnership with Virat Kohli and scoring 77. It was, however, Rohit Sharma जिन्होंने right on top of the innings एक momentum दे दिया था. That 40 was very, very valuable. And then of course Jadeja contributing. Maharaj bowled really well yesterday for South Africa, picking up but one wicket for 30 runs, and then Rabada one for 48. And in reply, South Africa, well, they were bundled out for 83. That was the end of their story on this match, 27.1 overs. But look at those figures for Jadeja, 5 for 33, incredible. Kuldeep Yadav, 2 for 7. And then, of course, it was Shami picking up 2 for 18. He has been looking good. All of the Indian bowlers and batters looking fantastic. And a victory with 243 runs for India. Just outstanding stuff. हम लोग बात कर रहे थे कल भी बड़ी इसके ऊपर तफसीलन हमने गुफ्तगू की थी, but let me start off with you, Moin. What an incredible way India is playing their cricket. हर डिपार्टमेंट के अंदर मुकम्मल डोमिनेंस शो कर रहे हैं, और तो और ये हो गया कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अनडिफीटेड हैं, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो तो शक व शुबात उन्होंने पैदा करने शुरू कर दिए इनकी सक्सेस के ऊपर कि नहीं कुछ हो रहा है, या तो बॉल में कुछ गड़बड़ है, या इस चीज़ में कुछ है, या बल्लों में रबड़ लग गए हैं, कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन. या I think throughout the tournament, I think they really played well. सबके सामने इतनी outstanding performance, not only एक department के अंदर, but तीनों like batting, bowling, fielding में outstanding performance दी, and everybody is clicking up like on time. जहाँ requirement है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है इंडिया टीम को, वहाँ पे कोई ना कोई player आके perform कर रहा है. I think extraordinary performance. ये देखिए जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती है, नेशनली लोग बात करते हैं तो कैसे हुआ. आई थिंक हर सक्सेस के पीछे एक फखर स्टोरी होती है. आई थिंक दे रियली डिड देयर हार्ड वर्क. इसकी प्रिपरेशन की नज़र आ रहा था, ऑल्दो के प्रॉब्लम भी आए कि हार्दिक पांड्या बीच में अनफिट हुए, उसको भी उस गैप को भी फिल किया इंडियन. पीछे बैक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एक प्रोसेस से आ रहे हैं लड़के, और फिर जिस तरह प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं थ्रू आउट लाइक इतने क्राउड के अंदर. आई थिंक ये जो पिछले 10-12 सालों में IPL हुई, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. प्रेशर हैंडलिंग आ गई है, इतने बड़े क्राउड के सामने इतना इजी नहीं होता खेलना, लेकिन जिस तरह प्रेशर हैंडलिंग हमने देखी है, जहाँ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है वहाँ पे मिडल ऑर्डर आ गया, या ऊपर से रोहित ने खुद इनिशिएटिव लिया और एक टोन सेट किया. कल के मैच में भी हमने देखा, नज़र आ रहा था क्लियरली कि लो स्कोरिंग पिच होगा
उस पिच के ऊपर आके जिस तरह रोहित और गिल ने डोमिनेट करना शुरू किया और लेटर ऑन फिर वहाँ पे संभाला विराट ने आके, और श्रेयस अय्यर के साथ एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है। 11 से लेके 20 तक का जो स्पैन था वो उन्होंने सिर्फ 33 सेट हुए वहाँ पे, और फिर एट द एंड फिनिश किया 326 रन में। आई थिंक एवरीबडी इज़ रेडी, हर एक ने अपना प्लान किया हुआ। टीम के अंदर ऐसे ही होता है, जब सब प्लेयर्स का एक ही गोल हो तो मोस्ट लाइकली होता है कि सब प्लेयर क्लिक करने लगते हैं एज अ टीम। ये शोएब मलिक बड़े शुरू से कहते आए इस वर्ल्ड कप के अंदर कि सबका टीम का गोल एक होना चाहिए, इंडिविजुअल गोल से ऊपर होनी चाहिए, टीम के गोल की बात करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट, आई वांट टू आस्क यू दिस मिसबा, ये कैसे है कि रोहित शर्मा जब आते हैं क्रीज में ओपन करने आते हैं और अच्छे से अच्छा बॉलिंग अटैक भी, और हमने देखा है अभी तो सारे अच्छी टीमों से वो मैचेस खेल चुके हैं हमने, कि वो आते साथ ही अटैक कर देते हैं वो भी, और फिर उनके साथ जो उनके दूसरे पार्टनर भी होते हैं वो भी बराबर का उसके अंदर जो है शरीक हो जाते हैं। हाउ डू दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कोई नहीं, आई कम डाउन द विकेट, मैं देखता हूँ कितना तेज गेंद करता है, या मैं देखता हूँ ये मेरे मुश्किल एरिया में मुझे फंसाना चाहता है, एंड देन स्टिल गो अहेड एग्जीक्यूट द शॉट। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू डू दिस? देखिए बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। एक तो ये है कि टॉप के प्लेयर हैं, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखें, जिस तरीके से वो थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, 3100 किए हुए हैं उन्होंने, आईपीएल में खेलते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी उनको एज है वो यहाँ की कंडीशंस का है। वो उन कंडीशंस का उनको पता है, हर ग्राउंड का, हर पिच का, कि यहाँ पे कैसे खेलना है। अब कलकत्ता में आप देख लें, सारे फंसे हुए थे, 220, 225, 30 की बातें हो रही थी, बट उन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ था कि नहीं, यहाँ पे भी कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पे भी 300 हो सकता है, और करके दिखाया। तो आई थिंक कि ओवरऑल एक तो कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना, फिर स्किल वाइज पूरा जो उस चीज़ पे काम करना, हर किस्म की गेम है उनके पास। तो सबसे बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो कि पहले प्रीवियसली कभी नज़र नहीं आए। स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। दुनिया की कोई भी टीम उनके पास भी नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल में अब टीमें ये सोच रही होंगी, जैसे एक टाइम पे सोचती थी कि मुरली कैसे दूसरा करते हैं, सकलान मुश्ताक दूसरा कैसे करते हैं, सईद अजमल कैसे दूसरा करता है, उस किस्म की बॉलर हमने प्रोड्यूस करना है। आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे बॉलर हमें चाहिए, कंडीशंस चाहे फ्लैट है पिच, ह्यूमिडिटी, गर्मी है, धूप निकली हुई है, इवनिंग टाइम है, भाई बॉल शुड टॉक। बॉल स्विंग रुकता ही नहीं है, जैसे उनके हाथ में आता है वहीं पे दूसरे बॉलर्स का कुछ नहीं हो, कंट्रोल से स्विंग होना। तो ये डेवलप करना पड़ेगा हर टीम को। अगर ऐसा होगा, बॉलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना उनको कि यार 225 भी कर लेंगे, तो 70 पे टीमों को आउट कर रहे हैं, तो प्रेशर तो ऑफ हो गया आपकी बैटिंग। एब्सोल्युटली। व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग द बॉल स्विंग सो मच फॉर इंडियन सीमर्स, शोएब? क्योंकि इसके ऊपर there is a lot of nonsensical conversation around it, but on a serious note, technically क्या हो रहा है? Wrist positions का खेल है क्या? They have worked out something at advanced level of biomechanics of the body and all that. What is it that they're doing कि जिसकी वजह से ऐसे results आ रहे हैं? बॉल इतना उनका मूव कर रहे हैं in all conditions. देखिए, दिस क्वेश्चन वसीम भाई शुड बी आंसरिंग। आई नो, आई विश ही वाज हियर, आई वांटेड टू आस्क हिम, लेकिन जो जितनी मुझे थोड़ी सी समझ है उसमें ये है कि एक तो कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें, अगर आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दिया एज अ प्लेयर, तो फिर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो आपने हार्ड वर्क किया हो, और उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज़ लाइक हियर। और सेकंड चीज़ ये है कि वो बैक करते हैं एक दूसरे को, और देखें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। दो बैटर्स जब बैटिंग कर रहे हो ना, सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो इसीलिए वो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट होती है। फिर वो थोड़ी गाइडेंस देते हैं, अगर एज अ बैटर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी बॉलर के अगेंस्ट, तो वो दूसरा पार्टनर उनको बताता है। आई थिंक सेम इज़ हैपनिंग इन बॉलिंग एज वेल, कि वो आपस में आप देखें कि जब वो आउट करता है, या बुमराह आउट करे, या सिराज आउट करे, या शमी आउट करे, तो बाकी दो बॉलर्स जो है ना, सबसे पहले आगे ऐसे हक करते हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं। और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है इनमें से, सो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर कि नहीं यार ये कंडीशंस, क्योंकि सम टाइम आपको रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, और वी हैव सीन ऑन द फील्ड दे डू दैट ऑफ्टन। और ये दूसरा वाला एलिमेंट है। तीसरा ये है कि उनकी रिस्ट पोजीशन, जो कल भी वसीम भाई ने भी एक्सप्लेन किया कि सिराज की रिस्ट
रिस्ट पोजीशन या बुमराह की और या उसकी शमी की, वो सीम बहुत अच्छे से लग रही है। और सिर्फ सीम नहीं लग रही है, ये जो एंड में जो पुश है, जो कल वसीम भाई ने बताया था, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये क्या होता है कि वो सीम को पुश करती है। जब ये रिस्ट पुश करती है, हमने ग्लेन मैकग्राथ को देखा, हमने मोहम्मद आसिफ को देखा, उनके केस में ये चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको वो हेल्प भी मिल रही है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन दिस इज़ देयर कॉन्फिडेंस। गुड थिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। इसमें जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, IPL की बात कर रहा हूँ। यकीन करें कि उस टाइम पे ज़हीर खान थे, परवीन कुमार थे हमारी टीम में। अब वो उनको पता था, उनके कोचेस को भी, कि ये बेसिकली नया बॉल, ये रिस्ट है इनकी, और जो नया बॉल इनका हिलता है या स्विंग होता है, यही इनकी स्ट्रेंथ है। यकीन करें हर रोज़ आके वो ठीक ठाक टाइम उस पे लगाते थे सिर्फ बॉलिंग कोच के साथ, कि कैसे रिस्ट पोजीशन, कैसे फिर एक्शन अपना कैसे कंप्लीट करना, बकायदा वो अलग से उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो इंडिया में क्योंकि फ्लैट कंडीशन है, पिचेस अच्छी हैं, बैट्समैनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर नया गेंद आपका स्विंग नहीं होगा, वहाँ पे कुछ स्पेशल आप नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। और यकीन करें, आज अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, आप यूट्यूब या कहीं पे खोलेंगे, रिसर्च करेंगे ना फास्ट बॉलिंग के हवाले से, तो जो सबसे ज़्यादा वीडियोस आपको नज़र आएंगी वो इंडियन बॉलिंग कोचेस की नज़र आएंगी। इवन क्लबों में वो ये जो फ्लिक हम बात कर रहे हैं रिस्ट की, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, बॉल निकलना कैसे, आपका एक्शन कहाँ से आपने उसको कंट्रोल करना है फॉर इन स्विंग आउट स्विंग, सो मैनी ड्रिल्स, सो मैनी प्रैक्टिसेस, और वहीं से वो बॉलर्स को पूरा उनका बायोमैकेनिक्स उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। Yep, and the results are very, very obvious. We're going to have more about this once we have Wasim Akram back in the studio with us here in the Pavilion. But right now we're going to take a break. When we come back, we're closer to the action of the day. Don't go away. Stay with us. Hello and welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. Continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. We have another game in store for you. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah and Moin Khan. Wasim Akram is not feeling well and not with us this morning session. He would be joining us today in the evening. We wish him a speedy recovery. With that, let's take a look at what we have in store for you today. आज का मुकाबला आपकी खिदमत में हम लेकर आ रहे हैं। आज के मैच के हवाले से गुफ्तगू का बाकायदगी से आगाज करते हैं। बांग्लादेश बामुकाबला श्रीलंका, दिल्ली से मैच आना है बराह रास्त 1:30 बजे आपकी खिदमत में यहाँ पे स्क्रीनों पे आएगा। इसके हवाले से बात करते हैं। दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ढूंढ रही हैं अपने लिए, ताकि इस वर्ल्ड कप के टेबल पे जो है पॉइंट्स टेबल पे दे कुड इंप्रूव। इसी मौके पे जरा पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाल लेते हैं टू गेट एन आइडिया ऑन वेयर द पॉइंट्स टेबल इज नाउ। ऑफ कोर्स द पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त जो है वो इंडिया राइट ऑन टॉप है। उन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं और 8 के 8 जीत के 16 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द टेबल है। उसके बाद साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका इंडिया दोनों सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जो दूसरा जो सेमीफाइनल है उसके लिए 2 टीमों ने क्वालिफाई करनी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपके सामने मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैचेस खेले हैं, 5 जीते 2 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ वो खड़े हैं वहां पर तीसरे नंबर में। मोस्ट प्रॉब्ली दे विल क्वालिफाई। अब रह गया चौथा स्पॉट। चौथे स्पॉट के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑल ऑफ देम in fact are in the race for that, and we'll find out how this shapes up in the days ahead. याद रहे कि जो टॉप की 4 टीमें वो सेमीफाइनल खेलेंगी, बॉटम की 2 टीमें जो हैं वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगी। एंड इंग्लैंड देयर आल्सो मस्ट बी वेरी वेरी वरीड। दे विल बी गोइंग बैक होम एंड going back to the drawing board and trying to figure out what went wrong. I mean, जो टेम्पलेट इंग्लैंड ने वाइट बॉल क्रिकेट की पूरी दुनिया को दी थी, आज पूरी दुनिया उसके ऊपर खेल रही है, एंड इंग्लैंड हैव फेल्ड मिserably at that. With that, let's talk about what we have today. ये मैच है जनाब बांग्लादेश श्रीलंका का। 3 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर, और श्रीलंका ने हमेशा हराया बांग्लादेश को वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर। हेड टू हेड इनकी जब आप जाते हैं, सो दे प्लेड टुगेदर विद ईच अदर 3 मैचेस, and in the 3 games all 3 have been won by Sri Lanka, so quite a clear record there, one-sided record there. However, the situation that we have to take into consideration is न्यू दिल्ली के क्लाइमेट के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, जिसकी वजह से बड़ा कुछ जो है वो प्रॉब्लम में रहा है। शोएब, शेयर दैट विद अस प्लीज। आई थिंक जो हमारे पास ये चीज़ आई हुई है उसमें लाहौर में वी हैव बीन हैविंग द सेम इशू, और आज जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI का करंटली इन दिल्ली इज़ रेंजिंग फ्रॉम 400 to 500 हो गया है, जिसकी वजह से उनके प्रैक्टिस सेशंस भी जो है वो कैंसिल हो गए थे। और आज भी जो अपडेट है सो फार वो मेरे ख्याल में यही है
के असेस कर रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा कि जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडिकेटर जो है वो अभी भी बता रहा है कि वो तकरीबन 500 के रेंज में है, 500 का इंडेक्स उसका वो कर रहे हैं। ये भी आपको बताते चलें कि ये एक स्टेज पर एक टेस्ट मैच हो रहा था गालिबन इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स जो थे वो उल्टियाँ करना शुरू हो गए थे। दे वर वॉमिटिंग मोइन ड्यूरिंग द टेस्ट मैच ऑन द ग्राउंड एंड पेविलियन के अंदर उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे हुए थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बैक देन। Climate change is a real issue worldwide, and climate change तो अपनी जगह है ही है, but it is the pollution that you can see this ये screen है, you have people wearing masks and moving around the ground, and it is. I can recall that test match. उसमें भी हमें बहुत सारा लोगों को वायरल इन्फेक्शंस हुए थे इसी वजह से। मैं बिल्कुल ठीक था, टॉस हुआ, टॉस जीत के हमने बैटिंग की और आप सुबह जैसे नॉकिंग करते हैं कार करके, जब मैं गया अंदर ड्रेसिंग रूम में, जब तक मेरी बारी आनी थी मुझे अचानक मेरा गला बिल्कुल सडनली ऐसे लगा गला पकड़ा गया, बुखार 103-104 पे बुखार, और जब तक मैंने बैटिंग करने गया हूँ तो आई वाज ऑलमोस्ट डाउन। सो ये अनफॉर्चुनेट है। लाहौर में भी ऐसे ही आज बिल्कुल, चूंकि साथ साथ है ना, लाहौर और न्यू दिल्ली बिल्कुल करीब हैं, सो दे हैव द सिमिलर काइंड, वो स्मॉग का इशू भी रहता है, पोल्यूशन का भी इशू रहता है थ्रू एंड थ्रू। बिल्कुल, और कई दफ़ा ये होता है कि बहुत जल्दी 2, 2:30, 3 बजे ही आपको पता चलता है जी वो पूरी स्मॉग आ गई है और फॉग भी आ गई और नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी नहीं है। और उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा जो होता है कि आपके गला वायरल आपको होना शुरू हो जाता है, एंड देन यू आर इन ट्रबल। Yeah, this has really been where has there ever been any initiative ICC की तरफ से in how they can improve their carbon footprint of cricket and cricket matches, because जो लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर and everything that comes into it, has there ever been a conversation like that? Are you aware of it, Misbah, about climate change and carbon impact? No, I've never attended any ICC meeting, so I have no idea. We'd like to dig into that more, but there is a serious problem. ये 2017 के टेस्ट मैच की हम आपको बात बता रहे हैं, जहाँ पर बांग्लादेशी खिलाड़ी जो थे उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी, वॉमिटिंग ऑन द ग्राउंड, एंड a lot of people got ill. Now currently 300 से ऊपर का जो इंडेक्स होता है एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, वो हैजर्डस जो है उसको कहा जाता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए हैजर्डस होता है, एंड द सैड पार्ट इज दैट बोथ लाहौर एंड न्यू दिल्ली आर above 300, way above 300, and we are hoping कि फैसलाबाद में भी हमारा टेस्ट मैच था विद जिम्बाब्वे, इवन टॉस तक नहीं हुआ था उस पूरे टेस्ट मैच में, 5 दिन फॉग स्मोक वगैरह बिल्कुल। Anyway, we've got a match preview. Let's take a look at. All right, there you have it. With that, we're going to take a break right here in the pavilion. But when we come back, there is some breaking news that we will share with you. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the pavilion. A lot happening today. It's a strange morning at the ICC Men's World Cup, and we've got some breaking news for you. Shoaib, care to share, please? Yes, the Sri Lankan जो है सैक्स बोर्ड अपॉइंट्स इंटरिम कमेटी, जिसमें जो उनके सेकंड बिग थे क्रिकेट बोर्ड में द सेक्रेटरी ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट मोहन डिसिल्वा, द सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल इन द बोर्ड, स्टेप डाउन ऑन फ्राइडे, क्योंकि जो फैंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर जो लोगों को लगाया अर्जुना रानाटुंगा, उनके साथ जो है 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एंड 7 मेंबर्स, तो वो एक कमेटी बनी है। बट इन माय ओपिनियन आई थिंक द थिंग विच मिस्टर मोहन डिसिल्वा डिड, ही स्टेप डाउन, क्योंकि वो नहीं उस तरह कर पाए तो ही स्टेप डाउन। मतलब ये नहीं हुआ कि इस प्लेयर को इधर कर दिया जाए, उस प्लेयर को उधर कर दिया जाए। दैट्स द बेस्ट लॉट दे हैव, और इसी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए जो 7 मेंबर्स की कमेटी बनी है अर्जुना रानाटुंगा के साथ और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, बट ये कंसिस्टेंटली रहेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बट एटलीस्ट दे हैव टेकन सम इनिशिएटिव जो कि क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है। और अर्जुना रानाटुंगा, we all know that he won a World Cup for Sri Lanka, so it's a good sign for Sri Lankan cricket. Yeah, we wish all the Sri Lankan fans all the best and the Sri Lankan team all the best. आज श्रीलंका का मुकाबला है बांग्लादेश से। Now both teams, they want to win this game. Why? Because they want to qualify for the ICC Champions Trophy. याद रहे कि जो बॉटम की 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगी. So now for them, these 2 teams
semi-final is a very far off thing. They're focusing on winning this one and somehow making sure that they qualify for the ICC Champions Trophy. सूरत हाल न्यू दिल्ली में जैसा कि हमने बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडिकेटर है वो बहुत हाई रीडिंग्स दे रहा है, हैजर्डस दे रहा है और पोल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है. बट लेट्स गो ओवर टू न्यू दिल्ली एंड सी द पिच एंड सी द एनवायरनमेंट. Here's the pitch report brought to you by Colgate GRF. Well, there you have the pitch report. Ian Bishop saying win the toss and bat first. Misbah, looked like a clear sight to me, and I could see Sri Lankan players जो थे वो background में कुछ practice भी कर रहे थे. So no masks. Doesn't look like pollution is a big problem this morning. सिर्फ एक बंदे ने मास्क पहना हुआ था जो फील्डिंग करा रहा था. जो फील्डिंग करा रहा था. ओवरऑल पिच हमने देखा यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं बड़ी ज़बरदस्त पिच और जो नज़र भी आ रहा है पिच बड़ी ज़बरदस्त रोल हुई है. थोड़ा छोटा ग्रास जब प्रॉपरली रोल्ड होता है तो मेरे ख्याल में उस पर और ज़्यादा बेहतर आता है बल्ले पे बॉल. और वजह जो बैटिंग की कह रहे हैं वो इसीलिए है कि इवनिंग टाइम पे अगर कोई स्लोनेस थोड़ी बहुत पिच पे आती है उसका स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं. प्लस नया बॉल जिस तरीके से स्विंग हो रहा है इंडिया में जहाँ पे भी देख रहे हैं आप, दिल्ली में थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी समहाउ जो अर्ली अंडर नेचुरल लाइट है उसमें और अंडर लाइट्स में फ़र्क क्लियरली आपको नज़र आ रहा है. और फिर आप अगर 300 प्लस कर देते हैं 350 कर देते हैं तो वो स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है वो भी मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है दूसरी टीमों के लिए संभालना. और भी चीज़ें अच्छी कि इस वेदर में ना दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं वो आराम से खेल लेंगे. They're used to that. सारी डस्ट और I know, है. they're used to that. You have images coming out of the New Delhi stadium right now, as you can see. The teams are out there. There are no masks at this time and stage. You know, मैं भी इस वक्त इंटरनेट पे चेक भी कर रहा था. Though the indicator, the air quality indicator, the AQI is saying that it's above 312, 314 right now, which is hazardous. That is what the air quality is right now, but it is not as bad as it was initially expected. के होगा. So how does किस किस्म का टॉल लेते हैं? अगर इस किस्म की एयर क्वालिटी हो तो व्हाट काइंड ऑफ टॉल डज इट टेक? इवन द 300, फॉरगेट कि ये मैच 400-500 की बात है, बट 300-312 में भी ये किस तरह का टॉल लेती है ऑन एन एथलीट, ऑन बॉडी ऑफ अ प्लेयर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स? ऐसा मेरे पूरे करियर में इस तरह की कभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं आई है. बट जो अभी कंडीशंस देखी हैं, कोई भी किसी भी प्लेयर ने मास्क वगैरह नहीं लगाया था. इट मीन्स के मैच तो इजीली होगा, टाइम पे मैच शुरू होगा. ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही एयर के अंदर जो इफ़ेक्ट करे प्लेयर्स के ऊपर. तो आई होप कि एक अच्छा मैच हो जाना चाहिए यहाँ पे. और इतना जैसे अभी शोएब ने बोला कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की दोनों टीमें थोड़े से स्ट्रांग होते हैं इस वेदर में, यू नो. हमारे फेफड़े बर्दाश्त कर लेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम भी देते रहे, फेफड़े भी बर्दाश्त कर लेंगे. तो ये जब लाहौर में आती है तो आराम से हम लोग घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाला वो चीज़ होगी आपकी ब्रीदिंग में, बिकॉज यू स्टार्ट रनिंग, तो उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है. बट आई एम श्योर बैकअप प्लान ज़रूर, जो अगर मीटिंग्स में कोई ऐसी बात नहीं हुई आईसीसी की, बट आई एम श्योर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि अगर अल्लाह ना करे किसी को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे दे हैव बैकअप फॉर देम. छोटे-छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर दे देंगे फास्ट बॉल. हाँ, पीछे लगा के स्कूबा डाइविंग के लिए. With that, we're going to take a break here in the Pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion, and you're watching Sports and Sports of the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and the news out in New Delhi is that the pitch report came in. It looks okay. There's a little bit of hazard because of the air quality. However, I think the match will go on. That's what we all think here. Breaking news हमने आपसे शेयर की कि श्रीलंका के अंदर जो है एक बड़ा रद्दोबदल हुआ है उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और the board has been sacked and an interim setup has been brought in, and we're talking about that. Let's talk about the Bangladeshis now. The Bangladesh has struggled throughout this World Cup. Moin, शाकिब अल हसन ने सिर्फ 104 रन बनाए हैं 17 शायद 3 दिन के एवरेज के साथ. मुशफिक ने 171 रन खाली. मुस्तफीज़ ने 4 विकेटें हासिल की हैं टोटल. तस्किन ने 4 विकेटें हासिल की हैं. The seniors haven't really performed for Bangladesh. You know, the guys that they were hoping will really deliver the goods. जी बिल्कुल. मेरा ख्याल है एक तो कप्तान की परफॉर्मेंस ना करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी टीम के ऊपर. शाकिब की हमने देखी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. एज फार एज बॉलिंग इज ऑल्सो कंसर्न, वहाँ पे भी कोई ऐसी विकेट्स नहीं, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आई इनकी तरफ से, यू नो. तो आप एक अगर कप्तान टीम का किसी भी परफॉर्म नहीं कर तो
टीम गिर जाती है, वो रिफ्लेक्शन नज़र आता है। फिर कॉन्फिडेंटली आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हो, बोल्ड डिसीजंस नहीं हो पाते। ये भी एक चीज़ है। और जो एक्सपेक्टेशन थी, जो सीनियर प्लेयर जिस तरह आपने बात की, लिटन दास हो गए, लाइक इवन मुशफिक रहीम हो गए, एक सीनियर प्लेयर जिसने परफॉर्म किया है वो महमूदुल्ला है, लेकिन बहुत इनिशियल मैचेस में हमने देखा 7 नंबर पे बैटिंग कराते रहे। एक वाहिद बैट्समैन था जो फुल फॉर्म में नज़र आता है, जैसे सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं अभी तक टीम में। लास्ट मैच में देखा उनको 5th नंबर पे लेके आए, उनको थोड़ा सा प्रमोट किया। लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो डिसीजन भी आपके मुश्किल हो जाते हैं, आपकी कॉम्पोजिशन सेट नहीं हो पा रही होती टीम की, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो एज अ टीम ओवरऑल अगर हम देखें तो वो परफॉर्मेंस बहुत बिलो पा रही है, बिकॉज कि हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सिर्फ एक मैच जीतेंगे आउट ऑफ 8 मैचेस। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये मैच जो है ये नेशनली इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। जिस तरह आपने बताया चैंपियंस ट्रॉफी की अभी भी दौड़ में टीमें लगी हुई हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा। श्रीलंका को मुझे लगता है कि यहाँ भी एडवांटेज होगा, बिकॉज कि दे ऑलरेडी प्लेड अ मैच हियर एट दिस ग्राउंड। इसमें ऐड मैं करूँगा वो ये कि आप पीछे चले जाएँ ना, 2015 के वर्ल्ड कप तक आप चले जाएँ, मुशफिक, शाकिब, महमूदुल्ला, अगर आप ऑलमोस्ट 10 साल बाद भी उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं और कोई और बैट्समैन आपकी उसमें उस कैलिबर का नहीं आया कि जिस पे आप डिपेंड करेंगे यहाँ पे आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा, तो इट मींस कि जो फैक्ट्री पीछे आपकी है, जो आपकी पीछे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोई डेवलप ही नहीं कर रहा ना। आज भी आप बैठे हैं कि शाकिब स्कोर करेगा, मुशफिक स्कोर करेगा या महमूदुल्ला करेगा तो हम कोई 250 कर लेंगे। तो पीछे 10-12 साल में फिर आपने क्या किया? यही प्रॉब्लम श्रीलंका की है कि महला जयवर्धने और संगकारा को रिटायर हुए में 2015 का आखिरी वर्ल्ड कप खेले हैं ना, तो आपको 9 साल 8 साल हो गया, 8 साल में अभी तक उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सका, या उनके करीब भी कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आया टेक्निकली ऐसा साउंड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जैसे दुनिया में हर टीम में है, हमारी टीम में है। नंबर 1 बैट्समैन है बाबर है, फिर स्टीव स्मिथ हैं या डेविड वार्नर हैं, इंडिया की टीम में विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, हर जगह पे हैं, रिप्लेस करते हैं और आते हैं। साउथ अफ्रीका को देखें, उन्होंने डेविड विलियर्स की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है, उनकी टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है। आपका स्ट्रक्चर कहाँ है? ये जो हम चेंजेस समझते हैं ना कि बोर्ड में चेंज करके तो कल सारा कुछ ठीक हो जाएगा, भाई नहीं होगा ऐसे। ये प्रोसेस लंबा है, आपको कम से कम 4-5 साल काम करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक स्ट्रक्चर को लेके चलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके अगले वर्ल्ड कप में जैसे 2015 के बाद इंग्लैंड ने किया उसके इफेक्ट नज़र है। ये सिर्फ जो है ना कॉस्मेटिक सर्जरी है कि बदल दो, लोगों को दिखा दो चेंज हो गया जी, चेंज हो गया, क्या कर लेंगे चेंज करके? वो आप मैं एज ए बैट्समैन मैंने इतनी सी चेंज करनी है ना तो मैं साल लगाऊंगा रेपिटेशंस करने उस चीज़ की रेपिटेशंस करने में। एंड ऑफ द डे जब मैं कंपटीशन में जाऊंगा तो हो सकता है इतना सा फर्क पड़े मुझे। तो दिस इज हाउ इट इज। इसमें ये भी है कि अगर देखें सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं जो मिसबा भाई बात कर रहे हैं, उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान, हम टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। तो जब आपकी बहुत ज़्यादा इन्फोसाइज जो है वो T20 क्रिकेट पे हो जाए तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप ना वो आपकी बेस हल्की होती जाती है, स्क्रैचेस आने शुरू हो जाते हैं जो कि इन टीम्स के साथ हो रहा है। तो एज ही सेड कि इन चेंजेस से कुछ नहीं होगा। अगर तो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो आपके प्लेयर्स हैं, तो उनको ये लंबी क्रिकेट, वसीम भाई भी उसी पे इन्फोसाइज कर रहे हैं, दैट इज द वे फॉरवर्ड। आज शाम को करना था, पहले हो गया। Right, we're going to take a break with that and we're going to come back. We'll talk more about that. Don't go away. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. और हम लोग बात कर रहे हैं आज श्रीलंका बांग्लादेश के मैच के हवाले से। And before the break, Misbah ul Haq had a very good point. Shoaib Malik and Misbah both. Misbah, you wanted to add something more कि ये boards की changes और शक्लों को change करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. There has to be a whole process to it. जी, और दूसरी जो उसमें मैं ऐड करना चाहता था कि हम जो बात कर रहे हैं T20 का इफेक्ट जो हो रहा है पूरी क्रिकेट पे, जो हमें वनडे क्रिकेट में साफ नज़र आ रहा है या टेस्ट क्रिकेट में नज़र आ रहा है। देखें, एक टीम जो डिफरेंट नज़र आ रही है वो कौन सी है? इंडिया। वो T20 क्रिकेट सिर्फ IPL, उन्होंने वहाँ तक अपने प्लेयर्स को महदूद किया हुआ है। वो 1.5 महीना 2 महीना जो भी है वो IPL खेलते हैं, एक्सपोजर लेते हैं T20 का,
अपने प्लेयर्स को नीचे से जो परफॉर्मेंस की होती है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में, जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको वहाँ पे मौका मिलता है, उनको वो इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है, लेकिन उसके अलावा वो अपनी सारी क्रिकेट जितनी भी इंडिया में क्रिकेट होती है, चाहे वो 1 डे क्रिकेट है, चाहे 4 डे क्रिकेट है, उनके सारे प्लेयर वो खेलते हैं। You mean उनका all the skill likes of level- विराट कोहली, बुमराह, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं? जी बिल्कुल जो खेलते हैं जब फ्री हो। उनकी अगर बात चले international ना भी commitment नहीं। करें, उनकी बात, वो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, वो नहीं भी खेलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी क्रिकेटर्स जो जिनकी डेवलपमेंट हो रही है, जो नीचे से आ रहे हैं, वो 4 डे क्रिकेट प्रॉपर खेल के आते हैं और ठीक ठाक मैचेस खेल के आते हैं, फिर 1 डे क्रिकेट खेल के आते हैं। इसीलिए उनका कंट्रोल, उनका स्किल लेवल डिफरेंट है। हमारे क्या हो रहा है, हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कई प्लेयर्स इवन हमारे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हैं, वो T20 क्रिकेट, आपका डोमेस्टिक चल रहा है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, T10 खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके वो प्लेयर फिर ये 1 डे क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए आपकी टीम जो है वो All right, we're going to take you now to New Delhi where the two captains are walking out to flip the coin. It's time to flip with Samsung Flip. राय जनाब, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से खबर यह है कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। Why would that be, मिसबा? What are you okay with that decision? देखिए, मोस्टली तो यही हो रहा है कि जो टॉस जीत रही हैं टीमें इंडिया के अलावा वही फंस रही हैं। हाँ। कोई 9 के 10 मैचेस जो है ना, वो जो ओवरऑल आपके टॉसेस हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। Right. क्योंकि वो जो भी आप डिसीजन करते हैं वो टोटल इतना लग जाता है कि उसके बाद पता चलता है। और मुझे लगता है कि श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ है, मधुशंका और अभी चमीरा वापस आ गए हैं, फास्ट बॉलिंग, अंडर लाइट्स, उनको खेलना, अगर उन्होंने अच्छा Yeah, टारगेट that's what I'm सेट saying. कर Why would Shakib decide to bowl first? वो ड्यू फैक्टर इज जस्ट लेकिन उसकी bowler- यूटिलाइजेशन भी नहीं होती ना। जब टोटल लग जाता है तो वो क्या होता है, वो गीले बॉल से भी नहीं चेज होता, वो टोटल लग गया हुआ है। रहते हैं कि बॉल गीला होएगा, हुन होएगा, हुन और होएगा, हुन अर्ली होएगा। ऑन अंडर लाइट सब कॉन्टिनेंट में एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा स्विंग होता है बॉल, जो अंडर लाइट्स हैं सब कॉन्टिनेंट में। तो उसमें क्या होता है, आप एक टीम ने 350 350 लगा दिए, आपने 2-3 विकेटें जिन पे आप रिलाई कर रहे थे, क्योंकि पहले 3 बैटर्स वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आउट हो गए पहले 10 ओवर्स में, फिर तो 300, मैं कहता हूँ फिर आप मिठे भी नाल गेंद भी करा दो, नहीं चेज होने। तो मतलब यही है। एक ही आपका एडवांटेज हो सकता है कि अगर आप चेस करते हैं जब, तो आप पहले 15-20 ओवर्स में विकेट्स इन हैंड हो आपकी, आप नया बॉल निकाल दें। 5 के एवरेज से भी खेल रहे हो और विकेट्स नहीं गए हुए, यू आर ऑलवेज इन द गेम। 350 भी चेज हो सकता है। पाकिस्तान ने देखा किया उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका 345। तो मतलब ये है कि अर्ली ऑन विकेट्स नहीं दे, अर्ली ऑन विकेट्स दी तो वो दूसरी टीम वैसे ही, वो बॉलर्स भी जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक और रीजन भी हो सकती है शायद, जो पहला मैच यहाँ पे हमने देखा था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, उसमें श्रीलंका ने सेकंड बैटिंग करते हुए भी 300 प्लस रन कर दिए, 330 तक कर दिए थे। वो भी एक उनके जहन में फैक्टर होगा कि श्रीलंका ने यहाँ पे, बट यू नो बांग्लादेश अगर चूंकि जब इयन बिशप ने कहा था कि विन द टॉस बैट फर्स्ट, राइट, एवरीबॉडी सेज बैट फर्स्ट, सो नाउ बांग्लादेश हैव डिसाइडेड कि हम तो पहले बॉल करेंगे। बांग्लादेश की अपनी जो बैटिंग मूव्स हैं, आई मीन व्हाट आर दे एंटिसिपेटिंग कि हम इनको 200 में आउट करके फिर चेस करेंगे? बिकॉज बांग्लादेश की इस पूरे वर्ल्ड कप में 30 रन से ऊपर की एक भी पार्टनरशिप नहीं लगी, एक पार्टनरशिप वो भी यही 30 रन से चांस ऊपर ले नहीं रहे हैं ना कि कम से कम ऐसे है कि कोई चले 250 तक भी हम इनको यहाँ पे रोक लेते हैं, समथिंग बिलो 300 तो कोई ना कोई चांस हमारा। अदरवाइज उनकी बैटिंग तो इतनी अंडर प्रेशर है कि एक चीज़ और भी लगती है मुझे, ये लगता है कि उन्होंने कहा है कि ये जो अब जो भी होगा ना वर्ल्ड कप के बाद ही देखेंगे। नहीं भाई, जो 2 मैचेस हैं उसके लिए कोई प्लान कर लो। उन्होंने कहा नहीं, आप चलने दो, फ्लो में ही चलने दो। आई लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, इस पूरे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की सिर्फ एक पार्टनरशिप है जो 30 रन से ज्यादा की है, अदरवाइज ऑल पार्टनरशिप्स हैव बीन बिलो 30। एंड विद दैट वी हैव द प्लेइंग 11 कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। मोइन, टेक अस थ्रू, दिस इज द श्रीलंका। जी, दो चेंजेस हुई हैं इस टीम के अंदर भी, if I'm not wrong, या निशांक रजीता और कुशाल परेरा जो है, ये 2 चेंजेस। परेरा की वापसी हुई है। मैथ्यूज डिसल्वा, कुशाल मेंडिस, मधुशंका सबसे आई थिंक जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। रजीता भी पिछले मैच में इनका कमबैक हुआ था। ये बांग्लादेश की टीम है, लिटन दास, तंजीम शांतो, शाकिब, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, फखर-ए-आलम,
मिराज, तंजीम, तस्किन और शरीफुल। तफरीज नहीं खेल रहा आज। जी आज वो नहीं खेल रहे, लेकिन एक चीज़ इन्होंने भी चेंज किया, ये जो मिराज हैं इनको अभी उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। अर्ली ऑन जो था वर्ल्ड कप में इसको ऊपर खिला रहे थे, फिर उसको ले आए उसके एक्चुअल नंबर पे, तो वो भी उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। लेकिन अर्ली ऑन अगर हम देखें, जब अर्ली इन द वर्ल्ड कप ही वाज स्कोरिंग रन्स। आई डोंट नो क्यों चेंज किया उनको, समझ से बाहर है। मुझे लग रहा है आज वापस लेके आएंगे उसे ऊपर। Alright, with that we're going to take a break in the pavilion. When we come back, we are closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion, and the news out of Feroz Shah Kotla Stadium is Bangladesh won the toss and they have elected to bowl first. श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी, और इसके साथ ही वक्त हुआ है एक्सप्रेस पावर की तरफ से एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस. Alright, Shoaib Malik, for you. श्रीलंका. Sri-Lanka. Moin? श्रीलंका. Sri-Lanka. Misbah? श्रीलंका. Sri Lanka. All right, and those are your expert predictions brought to you by Express Power. और इसके साथ ही वक्त हुआ है player to watch out for, brought to you by Ufone. All right, Misbah, for you, the player to watch out for. मधुशंका. Madhushanka. Moin? कुशाल मेंडिस. Kushal Mendes. सदीरा समरा विक्रमा. Sadira Samra Vikrama. All right, and those are your players to watch out for, brought to you by Ufone. Misbah, Kushal Mendes, जब से कप्तानी उनको मिली है, he's not been able to deliver with the bat. क्या कप्तानी का, चूंकि एक बहुत बड़ा ये पाकिस्तान की टीम में भी एक डिबेट रहता है कि मे बी बाबर कैप्टन, यू नो, ही शुड, जिस तरह विराट कोहली कप्तान थे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत सीरियसली इफेक्ट हुई थी, अभी ये कुशाल मेंडिस के साथ भी यही नज़र आ रहा है. बिल्कुल क्लियरली आप नज़र आ रहा है कि वो जिस फ्रीडम के साथ खेल रहे थे उससे पहले, वो कहीं ना कहीं अब अफेक्ट हुआ है. वो जो इंटेंट थी उनकी वो बिल्कुल डिफरेंट है. अभी वो श्योर नहीं है, शॉट फंस के खेल रहे हैं. अर्ली ऑन अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ पे जब वो खेले थे तो ही वाज जस्ट गोइंग आफ्टर द बॉलिंग. जो उनके शॉट्स थे बिल्कुल क्लियर हेड था, छक्के भी मार रहे, तो कोई फिक्र नहीं नज़र आ रही थी बैटिंग में. जैसे ही कप्तान बने हैं तो वो आपका फेस ही नज़र आ रहा होता ना, कि फेस परेशानी नज़र आ रही होती बैटिंग के टाइम, कि शॉट मारूं ना मारूं, कैसे खेलना है, मैंने लंबी इनिंग खेलनी है, मैंने अटैक करना है. ही इज़ इन बिटवीन, सो इट्स अ गुड चांस फॉर हिम. इस ग्राउंड में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके गए हुए हैं, एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने यहाँ परफॉर्म किया था. आज मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो उसको याद करें, उस परफॉर्मेंस को, और उसी तरीके से खेलें. ये क्योंकि एज ए कैप्टन मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल बैटिंग के टाइम आपको कप्तानी के बारे में नहीं सोचना कि मैच कहाँ जा रहा है. यू जस्ट फोकस ऑन द बॉल, वन बॉल एट अ टाइम. बॉल आ रहा है, इसको मैंने कैसे खेलना है. आप अगर उस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि वो स्कोर इतना लग गया है, इतना चेज़ करना है, टीम का क्या बनेगा, then you are done. Batting that's just a lot of added pressure. With that, gentlemen, thank you very much, Shoaib. Thank you, Moin, and thank you, Misbah. We're going to take you to New Delhi momentarily, actually, when the match begins. So we will see you at the end of the game, and you can join us in the pavilion later in the evening. Good luck to both Sri Lanka and Bangladesh. They both want a victory under their belts, and may the best team win. We'll see you in the evening. Thank you for joining the pavilion.